work done. So work done के लिए firstly we have line integral over vector field. So line integral over vector field, if you have given a vector field f over R3, sum m x y z I plus n x y z j plus m n p x y z k. So in place of function, if it is a vector field, then the formula will be what? F dot t ds, where t is the unit vector to the path c. If c is path given to you, then the tangent vector in this at that point. So this will give you the line integral of a vector field, because vector field you have a direction. So with direction is what? The direction of tangent is the direction we are taking here. So if you will solve it, I can write f dot t is dr over ds. Tangent vector क्या है? S is the arc length parameter. S से क्या है हमारे कि अगर कोई arc है उसकी length S है, तो इसे as a parameter we can work. So dr over ds is the tangent and dot ds. So this you can write c dot f dot dr. ठीक है. Working rule में because you know working rule में we use the concept of t, parametric form of t. So working rule में this we will write f dot dr को what I can write? Integration f dot dr by dt, because r will be giving you in terms of t, जो पैरामीट्रिक कर्व होगा ना, तो f को क्या लिख देंगे हम? dr by dt, और यहाँ पर x y z की जगह I will put the components of rt I j k p, dr by dt into dt. In this case the limit will become t is equal to a to b. So it will give you the line integral of any vector field. So let us take one problem. Evaluate f dot dr, where this f is a vector field given by zi plus xyj and minus y square k. Okay, along the curve C given by RT is equal to t square I plus tj plus square root t k, and t is lying between 0 to 1. This I want to calculate. So what I will do, f dot dr, this I can write by this f of rt. So I will take the limit. So this f dot dr over the curve C. This I will write f of rt. RT क्या है यहाँ पर? This is your xt, this is your y, this is your z, है ना. इससे कंपेयर करेंगे तो ये x है, ये y है, z है. इसको हम पुट कर देंगे x y z. And dr by dt I will find here the tangent vector dot dt, and limit t is given 0 to 1. Okay, so how much it will be? 0 to 1 f of rt. So put it here. So t square, z is root t, है ना, z I है, so root t I and plus xy. So xy is t cube j and minus y square minus t square k. This is your f of rt. dr by dt you can find here. What is dr by dt? 2ti plus j, and under root t you can write plus 1 by 2 square root t k, है ना, and dt. Okay, now you can take the dot product. So I dot I is 1. So what is the dot product? You can write it. So this will be how much? 0 to 1 2 t to the dot product करा देखो, root t and t 2 to the power 3 by 2.
So 2t to the power 3 by 2 plus t cube j dot k and minus t square and 1 by root 2t will become minus 1 by 2 t to the power t 3 raised by power 3 by 2. dt. ठीक है, now it is a simple integration है ना, you can integrate it 3 parts में divide करके first second third and putting the limit 0 to 1, it is coming 17 by 20. So in this way you can integrate any vector field by this formula f dot dr, and this can be written this. So now if this vector field f is given you some quantity, so sometimes in problems if it is given in terms of, स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्लास चल रही है, केमिस्ट्री बैच में सर क्लास चल रही है फिजिक्स की, उनकी फिजिक्स की क्लास चल रही है। मैं लिख दे रहा हूँ रिकॉर्ड। If sometimes if it is given in terms of x y, तो आपको जो ये वेक्टर फील्ड है इट मे बी गिवन इन दिस फॉर्म। से एग्जांपल में एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, डेटा मे बी गिवन इन दिस फॉर्म, इवैल्यूएट c minus y dx plus z dy plus 2x dz इस फॉर्म में गिवन है। देखिए मतलब क्या है, ये आपका एम एक्स वाई कुछ फंक्शन है, तो माइनस वाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस 2, इसे एवेल्युएट करना है वेयर सी इज द हेलिक्स आर टी इज इक्वल टू, हेलिक्स की क्वेश्चन क्या होती है, हेलिक्स क्या है भाई, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने पूछा शायद आप लोगों से सबसे, हेलिक्स क्या है, दिस इज योर हेलिक्स है ना। यू कैन से इफ यू हैव अ सिलेंडर, तो जो सिलेंडर का जो पाथ आएगा दैट इज हेलिक्स, इस तरीके से जाता है ना, ये हेलिक्स होता है। तो हेलिक्स इट इज अ कर्व पाथ लाइक दिस। इसकी इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है cos t i प्लस sin t j प्लस t k, okay, and t is lying between 0 to 2 pi. So over the helix I want to find this. तो यहाँ पर f is not given in terms of vector field. Now it is given in terms of this m dx plus n dy plus p dz, where m is this. So how I will do here? So I will put function here. तो ये आपके पास जो है यहाँ पे if you will compare here, तो here in parametric form you can see here, ये x होता है आपका, तो x is cos t, y is sin t and z is t, because I will put rt in the function, and dx dy dz है, तो यहीं से हम dx निकालेंगे। If x is cos t, so dx is how much, minus sin t dt, okay, dy is how much, cos t, and dz is how much, dt। इन सब वैल्यूज को आप पुट करना है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली आई विल चेंज द इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ t एवरीवेयर। तो हम आई विल पुट द इक्वेशन ऑफ अ कर्व and dx dy dz I can calculate like this. So this c minus y dx plus z dy plus 2x dz, it will become 0 to 2 pi. Minus y means minus sin t and dx is minus sin t. So minus sin t how much? Sin square t dt. Okay. Plus z dy. So z is t and dy is cos t. So t cos t dt है ना, plus 2x dz. So 2x 2 cos t and dz is dt. So 2 cos t dt. dt chahe you can take outside. So it will be how much? Sin square t plus t cos t
प्लस 2 cos t dt। अब इसे इंटीग्रेट करना है तो यू कैन इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेशन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्यों भाई? यहाँ बाई पार्ट कर देंगे, 2 cos t का डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, माइनस साइन टी, एंड साइन स्क्वायर टी को व्हाट वी हैव टू राइट, साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? 1 प्लस क्या लिख सकते हैं इसे हम, 1 माइनस cos 2t, इसको, है ना? cos 2a, cos 2x is how much? 1 minus 2 sin square x। नहीं तो क्या आएगा यहाँ, बाई 2 और आएगा, तो sin square x is 1 minus cos 2x by 2। यहाँ पे ये लिख देंगे इसे। नाउ यू कैन इंटीग्रेट, तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट इज पाई। ये सॉल्व प्रॉब्लम है, यू कैन सी ऑन पेज 95। ओके ओके सर। नेक्स्ट important concept, we have work done by a force over a curve in space। work done by a force over a curve in space, वर्क डन के लिए क्या होगा, F जो आपको होगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फोर्स। इफ F इज अ वेक्टर फील्ड, वही एम एक्स वाई जेड का फंक्शन है। चलो लिख दे रहा हूँ, suppose this space means you are on R3, this is representing a force, ठीक है, इन द स्पेस, ये कुछ फोर्स लगा हुआ है, एंड आर टी इज अ कर्व, आर टी आपका कर्व है। अब फोर्स आपका हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स हो, या मे बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, एनी फोर्स इज बी देयर। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so I can represent by this, and along the curve, along some curve it is working, gti plus stj plus ktk ijk are unit vectors, and your t is lying between a to b। So what's happening, okay, that suppose this is a curve and force is applying on this, and the particle is moving along this, some object is moving, and you have, this is a force, suppose Fk। अगर मैं इसे यहाँ पे सेम वही कर रहा है कि यू हैव एन आर्क, इसको हम अगर वी कैन डिवाइड दिस आर्क इनटू सम सब आर्क्स, सम सब आर्क में डिवाइड कर दें, तो अगर मैं kth आर्क ले लूं इसका, तो kth आर्क विल बी व्हाट, सपोज इट इज लाइंग बिटवीन pk minus 1 to pk, and I am taking a kth arc, sub arc, and here is any arbitrary point xk yk zk on the arc। आर्क है आपका किसी लेंथ s लेंथ का, तो आई हैव डिवाइडेड दिस आर्क इनटू n सब आर्क्स, इट इज द kth sub arc where you have a point xk yk zk, at this point you have a tangent some tk, and this is the force, suppose it is fk, force is applying here। Okay, so you know if it is force is applying here, so what is this, the dot product I can write, this is the dot product, ये क्या होगा, fk dot tk, है ना, ये इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, कंपोनेंट ऑफ दिस। सो if you are dividing this into sub arc, and with this is the length of delta sk, इस small arc की length pk minus 1 pk, ये अगर लेंथ इसकी मैं कह दूं मॉड से लेंथ से नोट कर रहा हूँ डेल्टा sk है, तो what will happen, if you will find the Riemannian sum concept, then if I am taking the sum of all k is equal to 1 to n, product of this xk yk zk, force at that point with the t tangent at that point xk and yk zk, ठीक, एंड इसकी मल्टीप्लाई कर दे अगर हम डेल एस के से,
तो इट विल गिव यू द वर्क, टोटल वर्क डन W, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये क्या होगा, सारे वर्क डन जो सबमिशन K इज इक्वल टू 1 to n W के, अगर मैंने n सब आर्क्स लिए हैं तो W के अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होगा वर्क डन। अब यहाँ पर अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दें हम, and delta s tending to 0, and if this exists, so this will become C of f dot t ds, है ना, ये वर्क डन ये बन जाएगा। so this is the work done, ये W हो जाएगा आपके पास। so work done is what, ये जो हम f dot t ds पीछे दे रहे थे इसी यही फॉर्मूले में, if f is force then this quantity will become work done, ठीक है। अगर f को हम फोर्स से डिनोट कर दें, this quantity will give you the work done। work done इज होता है फोर्स इनटू, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यस सर। हाँ, तो इसको अब क्या कर रहे हैं, f into t in the direction of t into ds। so if C be a smooth curve parameterized by this RT and f be a continuous force field, f आपकी क्या है, कंटिन्यूस फोर्स फील्ड है। कंटिन्यूस मतलब कि ये सारे कंपोनेंट्स कंटिन्यूस है आपके over a region C, then the work done in moving an object from, कहां से कहां मूव कर रहे हैं हम, some point R, suppose T A to B था, तो इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, suppose A is RA to फाइनल पॉइंट suppose कैपिटल B to RB, है ना। ये आपका कोई एक पूरा आर्क था इस तरीके से, सपोज ये B पार्ट था, ये A था, इसको हमने डिवाइड करके फॉर्मूला बताया कि रीमानिंग सब के थ्रू जो फॉर्मूला आ रहा है ना। तो A to B अगर हम निकालेंगे, हमने एक सब आर्क का निकाला, उसे इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आपको होल वर्क डन दे देगा। along C is given by this formula, W is equal to integration f dot t ds। इसे कैलकुलेट करने का तरीका आपको बात मालूम है, क्या करना होता है हमें, ये कि इसे हम t में चेंज करेंगे और वर्क डन निकाल लेंगे। ओके ओके सर। हाँ, तो बस अगर f आपके पास फोर्स है तो दैट फॉर्मूला विल बिकम ऑफ वर्क डन। जैसे एग्जांपल 4 है योर पेज नंबर 913 पर, फाइंड द वर्क डन, find the work done by the force field F is equal to, बस इसको फोर्स नाम दे दिया तो ये फॉर्मूला वर्क डन बन गया, कुछ नहीं करा, कैलकुलेशन वगैरह सब सेम है एवरीथिंग, बस सिर्फ आपने नेम अगर कर दिया कि दिस F इज अ फोर्स फील्ड, इस फॉर्म में दे रखी है y माइनस एक्स स्क्वायर i z माइनस वाई स्क्वायर j प्लस x माइनस जेड स्क्वायर k along the curve। अगर फोर्स है तो यू विल बी मूविंग along some path, वो पाथ आपको गिवन है, RT is equal to some TI plus T square J plus T cube K, and T is lying between 0 to 1, from 0 0 0 to 1 1 1। यहाँ हमें वर्क डन निकालना है, मीन्स कि इफ यू हैव, इसको अगर ऐसे देखें कि ये ओरिजिन है XYZ, सो हियर योर पॉइंट इज देयर। तो अब ये पाथ कैसा है देखो, क्योंकि नॉन लीनियर है, डिग्री आ रही, तो ये कुछ पैराबोलिक टाइप का कर्व होगा ना, तो ऐसा कर्व है कुछ कि हम यहाँ इस तरीके से मूव करते हुए इस पॉइंट पर, ये है अगर 1 1 1 इट इज 0 0 0, तो अलोंग दिस कर्व इट इज C, है ना। इसका प्रोजेक्शन अगर आप यहाँ करेंगे तो आएगा 1 1 0 XY प्लेन पे। along this curve what is the work, इस कर्व की इक्वेशन सपोज ये RT आपको गिवन है, तो सेम आई कैन फाइंड सॉल्यूशन, लिख देना है सॉल्यूशन, आई विल सेटिस्फाई द कर्व इन F, सो F ऑफ RT, है ना, पहले F ऑफ RT कर लीजिए, तो y माइनस एक्स स्क्वायर,
This is your x, this is your y, this is your z. Y minus x square means t square minus t square I plus z is t cube minus y square is t4j plus x is t minus z square means t6k. Okay, so you got, ये तो 0 हो गया. You have t cube minus t4I plus t minus t6k. It is the value of a function force f in terms of along the curve RT. Okay. Now next thing I need dr by dt, है ना? So dr by dt you can find, it is I plus 2tj plus 3t square. Yes. Now you can find the formula. So f dot dr by dt. So work done is 0 to 1 f of RT. So 0 to 1 इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं जस्ट विद दिस dr by dt. 2tj plus 3t square k and dt. Okay, so how much it will be coming? You can find I dot I is 1, so you will having t cube minus t4, so it will be coming after solving 2t4 minus 2t5 plus 3t cube minus 3t8. ये मल्टीप्लाई हुआ 6 स्क्वायर, ये सब टर्म होंगे तो हाईएस्ट डिग्री 8 आएगी. नॉट अ सिंपल इंटीग्रेशन, इट्स वैल्यू इज 29/60. ठीक है, इन दिस यू कैन फाइंड अ वर्क डन. कितना वर्क डन करना पड़ेगा इफ यू आर मूविंग अलोंग द कर्व दिस थ्रू दिस फोर्स? So you have to do this much of work, moving a point from 0 0 to 1, है ना? इससे में वर्क डन निकल जाता है कि पॉइंट इज मूविंग इन अ स्पेस. स्पेस में अगर आपको पाथ मालूम है कि उसका स्पेस क्या है, ऑब्जेक्ट का पाथ अलोंग दिस पाथ, एंड इट इज ये फोर्स है, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगी हुई है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स व्हाटएवर दिस है, तो यू कैन फाइंड कि कितना वर्क डन होगा उस पे, है ना? तो प्रैक्टिकल ऑल दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल. Example 5 you can try by yourself. It's a same sort problem home assignment छोड़ दे रहा हूँ. Next concept we have flow integral. देखो सेम फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ f डॉट dr. अगर f फोर्स है तो इट विल गिव यू वर्क डन, और अगर f वेलोसिटी है किसकी, फ्लूइड की, है ना, तो ये आपके पास बन जाएगा फ्लो और सर्कुलेशन. Flow integral and circulation. For velocity fields. Velocity fields. Now suppose f represents f वही mi plus जो हम लिखते हैं mi plus nj plus pk. M are the function of x, y, z if it is in space. Suppose this represents the velocity field of a fluid, ठीक है, through a region in space, through a region in space. या कोई टाइडल बेसिन है या टर्बाइन चैम्बर है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ना, कहीं पर भी अगर आपके पास फ्लूइड मूव हो रहा है, देन फ्लो का फॉर्मूला हो जाएगा सी एफ डॉट टी डी एस, है ना? सेम फॉर्मूला देखो, बस यहाँ पर एफ क्या है, एफ इज द वेलोसिटी फील्ड एंड टी इज द सेम टेंजेंट, नॉर्मल टेंजेंट अलोंग द
पाथ, क्योंकि किसी पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा होगा, ठीक है। दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड फ्लो इंटीग्रल। पीछे क्या था, वर्क इंटीग्रल था, नाउ इट विल बी फ्लो इंटीग्रल। दिस इज कॉल्ड नाउ फ्लो इंटीग्रल when f is the velocity, it is called flow integral. If the curve is start and end at the same point, मतलब अगर a is equal to b हो जाए, कर्व कुछ इस टाइप का हो, घूम के इस तरीके से आ जाए, तो a is equal to b, both end points are same, तो फ्लो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताओ। सर्कुलेशन है ना, फ्लो इज कॉल्ड सर्कुलेशन। अगर इस तरीके से रोटेट कर रहा है फ्लो, जैसे वॉशिंग मशीन में पानी अगर जाता है तो वो रोटेट करता रहता है ऐसे, है ना, तो उस केस में फ्लो क्या हो गया, Yes, सर्कुलेशन अराउंड द कर्व। सर लेकिन ये फ्लो इंटीग्रल और वर्क इंटीग्रल सेम आता है ना? हाँ बताया ना, अगर ये फोर्स है तो एफ पे डिपेंड करेगा। अगर एफ आपको फोर्स गिवन है तो फोर्स से ये वर्क डन बन जाएगा एफ इंटू टी। अगर ये वेलोसिटी गिवन है तो ये आपको फ्लो दे देगा कि क्या फ्लो है, व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो, एट व्हाट रेट इट इज लिक्विड इज फ्लोइंग अलोंग द पाथ सी, ठीक है ना। यस, थैंक यू। तो एफ पे डिपेंड है व्हाट इज एफ। अगर पाथ आपका क्लोज है तो ये सर्कुलेशन हो जाएगा, इस तरीके से रोटेट करेगा, तो ये ऐसे रोटेट करता रहेगा ऐसे ऐसे, है ना, क्लोज पाथ पे, तो उसे हम सर्कुलेशन बोल देंगे। तो टर्मिनोलॉजीज यूज, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है। जैसे वन एग्जांपल, example 6, a fluid's velocity field is f is equal to xi plus zj j है वो, plus zj and plus yk. Now it's a fluid velocity. Find the flow along the helix RT is equal to, हेलिक्स इक्वेशन आपको मैंने दिखाई थी, cos ti plus sin tj plus tk along the helix and t is lying 0 to pi by 2. अब इसमें t 0 to pi by 2, तो हेलिक्स से कुछ पार्ट ले लिया हमने 0 to pi by 2। तो यहाँ पे आपको फ्लो निकालना है, ठीक है। सेम फॉर्मूला आई विल अप्लाई, नथिंग चेंज, बस एफ का इन्होंने नेम चेंज कर दिया तो वो फ्लो बन गया। तो क्या हो जाएगा फ्लो, एफ डॉट डी आर बाई डी टी आपको फाइंड करना है ओवर द कर्व टी इज इक्वल टू 0 to pi by 2 dt। ओके, एफ टी कितना है देखिए 0 to pi by 2, you can put it, x is cos t, so cos ti plus z is t tj plus sin t k, it is your frt dot dr by dt। dr by dt इसका हमने निकाला था पीछे, वही सेम क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी आई प्लस cos t j प्लस k, है ना t। अभी डॉट प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, cos t दिस इज हाउ मच, माइनस sin t cos t डॉट प्रोडक्ट है प्लस t cos t प्लस sin t डॉट वन sin t, बस। अब इसे इंटीग्रेट करना आपको आता है, इट इज योर 12th और 11th क्लास मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री है, ये डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ बाई पार्ट कर सकते हैं, यहाँ sin t cos t है, आई कैन राइट इट व्हाट 1/2 sin 2t, है ना। yes sir कर Yes, सकते हो sir. इसे, इट्स नॉट अ बिग टास्क, इट्स वैल्यू इज कमिंग आफ्टर सॉल्विंग
π/2 माइनस हाफ, है ना, इसे इंटीग्रेट कर, इसे क्या लिख दोगे आप यहाँ पे -1/2 sin 2t, इसका आप कर देंगे sin 2t का -cos 2t/2, यहाँ बाई पार्ट कर लीजिएगा और इसको डायरेक्ट कर देंगे, दैट इज सिंपल इंटीग्रेशन। सो इट इज द फ्लो, है ना, फ्लूइड्स वेलोसिटी फील्ड गिवन थी, तो हमें फ्लो पता चल गया कि किस रेट से इस पाथ के अलोंग इसका फ्लो होगा, व्हाट इज फ्लो। सिमिलर टाइप एग्जांपल 7 है, पेज 915 पे आप कर सकते हैं इसे। देन नेक्स्ट थिंग वी हैव फ्लक्स, एक फ्लक्स अक्रॉस अ सिंपल प्लेन कर्व, एक फ्लो था फ्लक्स, फ्लक्स को भी फ्लो ही है, लैटिन वर्ड है ये भी, फ्लक्स अक्रॉस अ सिंपल प्लेन कर्व, सिंपल प्लेन कर्व। बट सिंपल प्लेन कर्व क्या होता है, देखो व्हाट इज सिंपल कर्व, अ कर्व इज इन द XY प्लेन, अगर हम XY प्लेन पे ले लें यानी कि R2 में, a curve in the XY plane is simple if it does not cross itself, कोई कर्व ऐसा जो खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है, इट इज कॉल्ड सिंपल कर्व, ठीक है। जैसे ये एक कर्व है, ये है, या ऐसे ले लूं, अब इसमें ये सिंपल है ना, ये भी सिंपल है, बट ये नॉट सिंपल, सिंपल नहीं है। क्रॉस कर रहा है, इट इज नॉट सिंपल कर्व। ये ले लें तो ये भी नॉट सिंपल, और क्लोज कब होगा, इसमें क्लोज का मतलब पता है आपको, इफ सेम स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम, इफ a curve has same starting and ending point, then it is called closed curve, then it is called closed curve। ये नॉट सिंपल बट क्लोज्ड है, ये है ना, इट इज नॉट सिंपल नॉट क्लोज्ड, इट इज सिंपल एंड क्लोज्ड, इट इज जस्ट सिंपल नॉट क्लोज्ड, क्योंकि इसका एंड पॉइंट यहाँ आ रहा है, सिंपल नॉट क्लोज्ड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सारे केस बन गए, है ना, इसका इस्तेमाल आगे डेफिनेशन में होगा, इसलिए ये डिफाइन करा शुरू में पहले आपके लिए सिंपल कर्व। सो नाउ वी हैव अ डेफिनेशन फ्लक्स की, इफ सी इज अ स्मूथ सिंपल, सी इज स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, ये इस पे एक रेस्ट्रिक्शन अगर आ जाए कि सी आपका स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व हो, जैसे ये है सिंपल क्लोज्ड कर्व है, स्मूथ का मतलब कोई उसमें एज ना हो, ऐसा ना हो कि इस तरीके से एज आ जाए निकल के, तो यहाँ पे टेंजेंशियल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो स्मूथ नहीं है ना, तो स्मूथ मीन्स डिफरेंशिएबल होता है। स्मूथ क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व इन द डोमेन of continuous vector field f is equal to mxyi, अगर हम xy प्लेन की बात कर रहे हैं तो mxy ले लूंगा मैं, nxyj, है ना, nxyj इन द प्लेन, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर हमने जो सिंपल क्लोज कर्व डिफाइन करा प्लेन में किया है, सिर्फ प्लेन की बात कर रहे हैं। तो f is any vector field in the field, and if n in fact is a vector, n is the outward pointing unit normal vector,
वेक्टर ऑन सी, मतलब कि एन अगर आपके पास सी ऐसा कोई कर्व है, स्मूथ, क्लोज्ड है, सिंपल है, और एन इस पे आउटवर्ड पॉइंटिंग यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। जैसे अगर ये सपोज आपका टेंजेंट टी है, तो एन क्या है, इस तरीके से, ये कोई एन है वेक्टर आउटवर्ड पॉइंटिंग ऑन सी, देन द फ्लक्स ऑफ एफ अक्रॉस सी। तो अगर इस तरीके से कोई मूवमेंट हो रहा है ना, सपोज ये ऐसे मूव कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं इस तरीके से, मान लो एंटी क्लॉकवाइज ले लो, तो जो यहाँ पर अब मूवमेंट होगा इसे हम फ्लक्स कहेंगे। देन द फ्लक्स ऑफ एफ अक्रॉस सी इज गिवन बाय एफ डॉट एन डी एस। यहाँ पर अब क्या आ गया, ये डॉट प्रोडक्ट देखो एन से हो गया है, ठीक है। तो टी जो था टेंजेंट कब था, इफ यू हैव सिंपल फ्लो, फ्लो में आपके पास एफ डॉट टी था, इफ वेलोसिटी फील्ड एफ थी तो एफ डॉट टी। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन सिंपल क्लोज कर्व के लॉन्ग मूवमेंट हो रही है, तो इसको आप कहेंगे फ्लक्स। फ्लक्स क्या होगा, एफ डॉट एन डी एस। एन इज व्हाट, एन इज द आउटवर्ड पॉइंटिंग यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इट विल गिव यू द फ्लक्स। तो फ्लक्स और सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है, जो सर्कुलेशन था, है ना, सर्कुलेशन भी क्लोज हो रहा है ऐसे तो, बट सर्कुलेशन इज व्हाट, सर्कुलेशन इज द इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एफ, एंड फ्लक्स इज द इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट एफ, है ना। सर्कुलेशन भी यही है आपका, अगर देखें मैंने सर्कुलेशन क्या बताया था कि अगर हम क्लोज इसे क्लोज कर दें तो ये सर्कुलेशन है ना, बट डिफरेंस इज व्हाट, दैट circulation is the integral of tangential component। ये कोई वेक्टर है आपका, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक टेंजेंशियल और एक नॉर्मल। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट के साथ अगर इंटीग्रल लेंगे तो सर्कुलेशन है, while flux is the integral of normal component of it। ओके, कंसेप्ट क्लियर है भाई इसका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that is the flux. This is your flux. अब इस n को I can calculate, इसे कल कंटिन्यू करेंगे कि टाइम कम है, बस एक कंसेप्ट और रह गया कि हाउ व्हाट इज दिस n। अगर हमें n निकल गया तो वी कैन फाइंड द फ्लक्स, क्योंकि f तो आपको पता है कुछ वेक्टर क्वांटिटी फील्ड है ना। सो आई विल कंटिन्यू टुमारो एट माय allotted time 9:30। okay Okay, thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.